आप लोग मुझे बता दें, तो मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आ गई थी। ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आ गई थी। यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। होस्ट से मेरी दरखास्त है कि वो वीडियो रिकॉर्ड करे, ठीक है। स्टार्ट कर दी मैंने रिकॉर्डिंग सर। ठीक है, so if you guys want to transform a vector from the rectangular coordinate system to cylindrical coordinate system, we derived three equations, and then we had written all these three equations in the matrices format. So if you guys want to transform a vector from the rectangular coordinate system into cylindrical coordinate system, you guys will have to calculate the rho component of this vector, the phi component of this vector, and the z component of this vector. And you guys will have to calculate these three components with the help of this transformation matrix, cos phi, sin phi, and 0. And then we have minus sin phi, cos phi, and 0. And then we have 0, 0, 1. The x component of the vector will be known to you guys. So the x component will be known, the y component will be known, and the z component will be known. So ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था। इंतहाई आसानी के साथ आप लोग इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं इफ यू नो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर। तो इनको समझने के लिए आप लोग को चाहिए कि आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स को समझ लें। Once you know the transformation of the unit vectors from the rectangular coordinate system into cylindrical coordinate system, वहाँ पे unit vectors का जो scalar product है, you guys will have to develop the table for the scalar product of the unit vectors, और फिर उन scalar products की मदद से you guys can find out the rho component, phi component, and z component of a vector. And once these three components are known, you guys can write down this vector in the cylindrical coordinate system. In the cylindrical coordinate system, this three-dimensional vector will have a component in the direction of the unit vector a rho, a component in the direction of the unit vector a phi, and a component in the direction of the unit vector a z. ये लिखाई आप लोग को नजर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमने इन इक्वेशंस को डिराइव किया था और फिर इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस फॉर्मेट में लिखा था। मैट्रिसेस फॉर्मेट में मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैट्रिसेस फॉर्मेट में थोड़ा सा लाइक चीज़ें याद करना आसान होती है। देखिए, एक इंतहाई आसान ट्रिक, अगर if a vector is in the cylindrical coordinate system, let's say I discuss this vector which is in the cylindrical coordinate system, and you guys want to transform this vector from the cylindrical coordinate system into rectangular coordinate system. So if you guys want to transform it into the rectangular coordinate system, definitely you guys will have to calculate the three components in the rectangular coordinate system. Now you guys will have to calculate the x component, the y component, and the z component will already be known. याद रखें, ये z component है, this is a common component. It will be given to you guys in the cylindrical coordinate system as well as in the rectangular coordinate system. तो इस component की calculation की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देखें, so you guys will have to calculate these three components. और यहाँ पे definitely the rho component of the vector will be known, the phi component of the vector will be known, and the z component of the vector will be known. So if a vector is in the cylindrical coordinate system, the rho component, phi component, and z component will be given to you guys. And you see what you guys need to do. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में आप लोगों ने
इस माइनस साइन को चेंज करना होगा। यहाँ पे साइन के साथ माइनस साइन है, तो मेक इट पॉजिटिव और इसको माइनस कर दे। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ से हटा के इस साइन के साथ लेके, एंड यू सी बाकी इक्वेशंस एग्जैक्टली द सेम है। कैन यू गाइस वेरीफाई दीज इक्वेशंस प्लीज? अगर किसी के पास वीडियो है तो ये इक्वेशन वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ यही फर्क है, यहाँ पे साइन फाई के साथ माइनस साइन था, इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं माइनस साइन को। तो कैन यू वेरीफाई दीज इक्वेशन? यस सर, ठीक है, ठीक है, यस सर, यही है। यही इक्वेशन है। तो देखें, अगर आपको आई मीन लाइक 3 इक्वेशंस याद हो, तो आई मीन फिर इन इक्वेशंस को याद करना इंतहाई आसान है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में you guys will have to calculate the x, y and z component. The rho component will be given to you guys. The phi component will be given to you guys. The z component will be given to you guys. यहाँ पे माइनस साइन था, इस माइनस साइन को हटा के यहाँ पे लगा दे। So you guys can transform a vector from the cylindrical coordinate system into the rectangular coordinate system. So you guys will know the x component, the y component and the z component of a vector. ठीक है सर? जी। हमारे पास अगर एक वेक्टर हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, तो हम उससे फाई की वैल्यू वहां पर निकालेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। You guys will be given a point. न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने किए थे। You जी guys सर, will वो be given न्यूमेरिकल क्वेश्चन point. की बात कर रहा हूँ। You guys will be given a point. Point जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि point से you guys will have to calculate the value of phi. So सर ये वैल्यू if तो the हम point, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं निकाल सकते। नहीं, ये पॉइंट आपको पॉइंट गिवन होगा कि आप इस पॉइंट पे इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करें या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगुलर में ट्रांसफॉर्म करें। So the point will be given to you guys and you guys will have to calculate this angle from the given point. जी सर। This point will always be given to you guys, okay? Either in the rectangular coordinate system or in the cylindrical coordinate system or in the spherical coordinate system. So this point will be given to you guys. This point is very important because from this point you guys will have to calculate this angle, or this angle will be given to you guys कि ये angle है, इसी angle पे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन करें। सर तो ये तो मतलब पॉइंट पहले से गिवन है ना, हम अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे हम निकाल ले, मतलब थीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स y बाय x, उससे भी हम फाई निकाल नहीं सकते। y बाय x कहाँ पे होगा? वहाँ पे तो वेक्टर्स है सर। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वहाँ पे सिस्टम है, point तो नहीं है। उस पे हम स्प्लिट कर देंगे ना। खुदा के नेक बंदे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x वेक्टर का x कंपोनेंट होगा, वेक्टर का y कंपोनेंट होगा, वेक्टर का z कंपोनेंट होगा। ये पॉइंट तो नहीं गिवन होगा जहाँ से आप y कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि टेंजेंट इनवर्स a y बाय a x, नो, नॉट लाइक दिस। आप लोगों को पॉइंट गिवन होगा। सही है सर, ठीक है फिर। The point will be given to you guys, okay? और इस पॉइंट से आप लोग ये एंगल कैलकुलेट करेंगे। So the point will be given to you guys. सही है सर, अब क्लियर हो गए। जी। बेसिकली आप लोग को पॉइंट गिवन होगा कि आप लोग ऐसा करें कि लाइक इस पॉइंट पे, लाइक इस एंगल पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, आपको पता है कि 2 यूनिट वेक्टर्स डिपेंड्स अपॉन द एंगल। तो आपको गिवन होगा कि मतलब आप इस एंगल पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं, इस एंगल पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं। तो एंगल आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? जी सर। जी। एनी अदर क्वेश्चन? Any other question? अच्छा ठीक है। तो फिर जो था हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, टू ट्रांसफॉर्म a vector from the rectangular coordinate system into spherical coordinate system. ये वीडियो देख चुके हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। जी। इसमें कोई मुश्किल पॉइंट है? नो सर। The transformation of a vector from RCS to
STS. या the transformation of a vector from spherical coordinate system into rectangular coordinate system, इसमें कोई मुश्किल है? नो सर। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, इस वीडियो में एक ऐसा पॉइंट जिसकी आपको समझ ना आए, समझ ना आती हो, तो आई मीन यू गाइस कैन आस्क द क्वेश्चन बाय द वे। सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना, आई मीन लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनिट वेक्टर्स को आप लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कि यू गाइस कंसीडर two vectors of the cylindrical coordinate system. You guys consider the unit vector arrow and the unit vector AZ. Okay, these are the two unit vectors of the cylindrical coordinate system. And then we consider the unit vector AR. And we know that this unit vector AR makes an angle theta over here. And then we resolve this vector into two components. So this component will be cos theta AZ. And this component will be sin theta arrow. Sin theta arrow. So basically हमने इस AR वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है दो कंपोनेंट्स में। हमने AR को रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में। So the unit vector AR is basically equal to sin theta arrow plus cos theta AZ. ठीक है जी। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो फिर हमने एरो को ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म किया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज cos phi ax plus sin phi ay. If you put the value of arrow over here in this particular equation, तो AR आप लोग के पास आ जाएगा, AR will be equal to sin theta cos phi ax plus sin theta sin phi ay और प्लस आ जाएगा cos theta az. ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर आप लोग AR डॉट AX को कैलकुलेट करने चाहे तो आप लोग के पास क्या आएगा? sin theta cos phi. हाँ, AR dot AX will give you sin theta cos phi. AR dot AY will give you sin theta sin phi. sin theta sin phi. AR dot AZ will give you cos theta. cos theta. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ द यूनिट वेक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी मैंडेटरी, बिकॉज इन्हीं स्केलर प्रोडक्ट की मदद से फिर आप लोग एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, सो देन वी कंसीडर another unit vector AR. This is unit vector A theta. We know that the angle between these two unit vector of the spherical coordinate system is how much? 90 degree? 90 degree. Yeah. और इस एंगल को मैं अल्फा का नाम देता हूँ, राइट? यस सर। ठीक है। इन तीनों एंगल्स को अगर आप लोग ऐड करें, इफ वी ऐड ऑल दीज थ्री एंगल्स, थीटा प्लस 90 plus 90 अल्फा plus विल pi बी इक्वल टू 180. हाँ, so अल्फा जो है that will be equal to 90 minus थीटा। अच्छा, फिर इसको रिजॉल्व करें आप लोग। इसको अगर आप लोग रिजॉल्व करें, दिस इज द कंपोनेंट व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस AZ, so this one will be equal to minus cos of alpha AZ.
and this component is in the direction of unit vector arrow. So this one is sine of alpha arrow. ठीक है, so a theta को हमने रिजॉल्व कर दिया है कितने कंपोनेंट्स में? two components में. The first component is minus cos alpha a. Okay, इसको मैं बाद में लिखता हूँ, az को सबसे पहले मैं एरो को लिखता हूँ. तो एक कंपोनेंट जो है साइन ऑफ अल्फा एरो है, दूसरा जो है दैट इज माइनस कॉस अल्फा एजेड. ठीक है जी. तो बेसिकली वी हैव रिजॉल्व दिस यूनिट वेक्टर ए थीटा इनटू टू कंपोनेंट्स, साइन अल्फा एरो एंड माइनस कॉस अल्फा एजेड. यहाँ पे जो है आप अल्फा की कीमत डालें. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा. If I put the value of alpha, Cos theta, yes. sin of cos theta, तो यहाँ पे a theta आ जाएगा. A theta will be equal to what? Cos of theta multiplied by arrow. और cos of 90 minus theta किस चीज के बराबर होगा? माइनस साइन थीटा. Cos of 90 minus theta जो है वो cos of 90 नहीं माइनस के बराबर होगा कि प्लस के बराबर होगा? माइनस सर. नहीं, cos of 90 minus theta will be equal to cos of 90 cos of theta plus, जब cos में माइनस साइन होता है तो पर प्लस आता है ना? यस सर. हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा के बराबर. दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा एज एड, राइट? यस सर. ये नजर आ रहा है आप लोग को? यस सर. यस सर. यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ एरो. अगर हम यहाँ पे एरो की वैल्यू डाल दे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? ए थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई ए एक्स प्लस कॉस थीटा. सर आपने ऊपर एक चीज गलत की है. बताएं सर वो ऊपर जो शुरू में एक चीज आपने गलत किया है. यार चीज क्या होता है, नाम बताओ सीधे से. ना अच्छा, सॉरी गलती हो गई थी. मुझे लगा कि गलत किया वो. सॉरी सर, सो सॉरी. अच्छा, सो वी हैव cos थीटा sin phi ay और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा az. और यहाँ पे ये स्केलर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज स्केलर प्रोडक्ट पे तवज्जो दे. a theta dot ax will give you what? cos theta cos phi. Cos theta cos phi. ay dot a theta will give you what? Cos theta sin phi. Cos theta sin phi. और a theta dot az will give you what? Sin theta. Minus sin theta. Minus sin theta. Good. So दो unit vectors को we have transformed these two unit vectors from the rectangular coordinate system into spherical coordinate system. The third unit vector is a phi. The third unit vector is a phi, जिसको already हम convert कर चुके हैं. The third unit vector is a phi. This is the unit vector of the spherical coordinate system as well as cylindrical coordinate. Cylindrical. तो ये ऑलरेडी हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको हम वो कर चुके हैं, रिजॉल्व कर चुके हैं. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इट वाज इक्वल टू माइनस साइन फाई ए प्लस cos phi माइनस साइन फाई ए एक्स प्लस cos phi. cos phi ay cos phi प्लस cos phi ए वाई. गुड. इसको ऑलरेडी हम रिजॉल्व कर चुके हैं. प्लस 0 एजेड आ जाएगा. जी सर. ठीक है, तो आपके पास तीन इक्वेशंस आ गए हैं. देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर 3. और इन तीनों इक्वेशंस को आप लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में. मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं. फिर एक आसान फार्मूला मैं आपको बताऊंगा. द फर्स्ट यूनिट वेक्टर इज ए आर, द सेकंड यूनिट वेक्टर इज ए थीटा and the third unit vector is a phi.
अच्छा जी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की बात हो रही है। सो यहाँ पे ए आ रही है, तो सबसे पहले आएगा साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। उसके बाद आएगा साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। काशिफ ने साइन कैसे थीटा हो? साइन थीटा साइन फाई, और फिर आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। यस सर। अच्छा, फिर ए थीटा की बात हो रही है, तो सबसे पहले आएगा कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। फिर आएगा कॉस थीटा साइन फाई, माइनस साइन थीटा, और फिर माइनस माइनस साइन थीटा आ साइन जाएगा। थीटा। गुड, अच्छी बात है, आप लोग को समझ आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो की समझ आ गई थी। अच्छा, उसके बाद है मतलब ए फाई के लिए हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन फाई, कॉस फाई, कॉस कॉस फाई। फाई, और यहाँ पे जीरो। 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। यस सर। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में, कैन यू गाइस सी द बोर्ड? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 यूनिट वेक्टर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी हैव ax, we have ay, and we have az. Okay, this is how we transform the unit vectors of the rectangular coordinate system into the unit vectors of spherical coordinate system. spherical coordinate system. अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। जी सर, अगर हम स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर दिया हो कि उसको सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करें, तो पहले हम उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेक्टेंगुलर को सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। एग्जैक्टली आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। यस सर, थैंक यू। अच्छा, मेरी बात सुने। अगर ये, इफ दिस वन इज नोन टू यू गाइस, इफ दीज इक्वेशंस आर नोन, ठीक है? यस सर। No, so no, so that question they get. So if these equations are known, and if you guys have a vector in the spherical coordinate system, let's say I have a vector which is in the spherical coordinate system. So this vector has a component in the direction of the unit vector AR, the second component in the direction of the unit vector A theta, and the third component in the direction of the unit vector A phi. So this is the 3-dimensional vector in the spherical coordinate system. Spherical coordinate system. And मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि transform this vector from the spherical coordinate system into rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system. यहाँ पे आसान तरीका ये है कि प्लीज मेरे साथ रहें। इस यूनिट वेक्टर ax को रिप्लेस करें, सॉरी, let's say this unit vector is in the rectangular coordinate system. I'm sorry. Let's say we have a vector which is in the rectangular coordinate system. So this will be the x component, here will be the y component, and here will be the z component of this vector, right? Let's say कि हमारे पास एक वेक्टर है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि इस वेक्टर को आप लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से उठा के कहाँ ले गए? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर AR था, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ बाय द स्केलर कंपोनेंट AR। यहाँ पे यूनिट वेक्टर A थीटा है, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ बाय द स्केलर कंपोनेंट A थीटा। यहाँ पे यूनिट वेक्टर A फाई है, और इसको मैं रिप्लेस करता हूँ बाय व्हाट? द स्केलर कंपोनेंट A फाई। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे द यूनिट वेक्टर AX है, रिप्लेस इट बाय द स्केलर कंपोनेंट AX। यहाँ पे यूनिट वेक्टर AY है, रिप्लेस इट बाय द स्केलर कंपोनेंट AY।
यहाँ पे यूनिट वेक्टर एज इट है एंड रिप्लेस इट बाय द स्केलर कंपोनेंट एज इट। तो एग्जैक्टली यही इक्वेशंस हम डिराइव कर चुके हैं और इन्हीं इक्वेशन की मदद से यू गाइस कैन कैलकुलेट this component of the given vector, this component of the given vector, and this component of the given vector. You guys will have to calculate these three components with the help of these three matrices. And once these three components are calculated, you guys can write down this vector in the spherical coordinate system. So we will have a theta plus a phi. तो ये एक आसान तरीका था। सबसे पहले आप लोग यूनिट वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करें, फिर यूनिट वेक्टर्स को रिप्लेस करें बाय द स्केलर कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर्स को रिप्लेस करें बाय द स्केलर कंपोनेंट। इंतहाई आसान तरीका। ठीक है जी? ठीक है यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक नजर डालते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर है विच इज इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक वेक्टर है विच इज इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने इस वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है किस सिस्टम में? आरसीएस, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर में हमने क्या कैलकुलेट करना होगा? ax ay az। हमने कैलकुलेट करना होगा ax, हमने कैलकुलेट करना होगा ay और हमने कैलकुलेट करना होगा az। ठीक है जी? ठीक है। यस। तो हम अगर ax को कैलकुलेट करना चाहें तो ax के लिए जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज व्हाट? a डॉट ax। ठीक है जी? a डॉट ax। यस। a डॉट ax। तो मैं क्या करता हूं कि मैं ar का ax के साथ जो है तो मेरे पास यही कंपोनेंट आ जाएगा। यस सर। मेरे पास ये आप लोग बाद में करेंगे, आपको पता है कि कैसे करना है। आप लोग के पास ये कंपोनेंट आ जाएगा। फिर जो है ए थीटा डॉट ax आ जाएगा। सर ये cos थीटा cos फाई आ जाएगा। एक मिनट ए थीटा डॉट ax आ जाएगा। तो एग्जैक्टली इसको जहां पे शिफ्ट करें, ये आ जाएगा cos थीटा cos फाई। यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा cos फाई। बिल्कुल इसको आप लोगों ने ट्रांसपोज ले ली। सर ट्रांसपोज भी आसान तरीका है सर। ट्रांसपोज ले लें। इसको रिमूव करो यार। कर दिए, म्यूट कर दिए। ओके, तो उसके बाद हमने करना होगा ए फाई डॉट ए फाई डॉट एक्स, तो माइनस साइन फाई यहाँ पे आ जाएगा। यस सर। यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन फाई। डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा cos फाई 0। और यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा साइन फाई। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और यहाँ पे भी मतलब चेंजेस आने साइन थीटा। आप लोग यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा। यस सर, माइनस साइन थीटा और यहाँ पे cos सर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे माइनस है। यस सर, उल्टा आपने लीजिए, चेंज कर सर, पहले cos है फिर माइनस साइन है। वो आप लोग कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये आप लोग कर सकते हैं, ये cos थीटा आ जाएगा और ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ। या अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म ले ले तो बात बनती है। यस सर, ट्रांसपोज। यस सर। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। अभी किसी ने बात की है कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले ले तो बात बन जाती है। क्या बनती है? यस सर, बिल्कुल एग्जैक्टली सहमत है सर। बनती है सर। तो फिर तो ठीक है, आसान तरीके है, ट्रांसपोज ले। थोड़ा फर्क आता है सर, ये माइनस का फर्क आता है। माइनस सर मैंने भी ऐसा ठीक है सर। आएगा सर, वो माइनस साइन फाई और cos फाई का फर्क आता है।
यहाँ पे मतलब लाइक यहाँ पे माइनस साइन थीटा ने आना था, वो यहाँ पे आ गया है। हाँ सर, एग्जैक्ट ही आता है, फर्क नहीं आता। एग्जैक्ट नहीं आता इसलिए, ठीक है। फर्क आता है सर, ये तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो एनी हाउ दिस इज हाउ वी ट्रांसफॉर्म अ वेक्टर फ्रॉम, हमारे पास टाइम है कि टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। 1 मिनट रहता है सर, 1 मिनट। टाइम अभी बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ एंड लेट अस कम बैक। हमारा दाता नहीं हो गई। स्टार्ट कर ली। यस सर। अभी स्टार्ट हो गई। ये कौन है यार? ये सनाउल्लाह नाम कौन है सर? वो लगाता है। अरे रिमूव मारो इसे। हाँ, सनाउल्लाह को हटा दो यहाँ से। हटा दिए सर, हटा दिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वी डिस्कस डिफरेंशियल वॉल्यूम। Differential volume in rectangular coordinate system, cylindrical coordinate system, and Spherical coordinate system. so did you guys read the topic? Did you guys watch Yes, the sir. video? यस सर। Yes, यस sir. सर, यस सर, बिल्कुल सर। खत्म कर रहे हैं सर। जबरदस्त। अच्छा, so basically, if you guys want to find out the differential volume in the rectangular coordinate system, you guys consider a differential vector in the direction of ax, another differential vector in the direction of the unit vector ay, and another differential vector in the direction of the unit vector az. So we consider these three differential vectors: ax, ay, and az. So we consider a differential vector in the direction of the unit vector ax, then another differential vector in the direction of the unit vector ay, then another unit vector in the direction of the unit vector az. Okay? And then we consider the magnitudes of these three vectors. These are the magnitudes. Yes, sir. Okay. So we consider the magnitude of these three vectors, and then we construct a volume with the help of the magnitudes of these three vectors. The volume will be very small in size, and we shall call it Differential volume. differential volume. Rectangular. जी जी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि you guys can consider, देखिए लाइन इस तरह कंसीडर करें। You guys can, सबसे पहले आप लोग x को कंसीडर करें, y को कंसीडर करें, और फिर z को कंसीडर करें, राइट? Yes. So this is dx, here is dy, and here is dz. dz. So यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करें। Let's say this is dx, let's say this is dy. वॉल्यूम अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। This is dz. Okay, यहाँ से एक, this line is dz. This line is dz. This line is dy. This line is dy. This line is dx, and this line is dx. Right? In तीनों की मदद से you guys can construct a differential volume, right? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी? जी sir. Okay. So you see the length of this line is dy. Yes, sir. The length of this line is dz. Yes, sir. इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। The length of this line is dx. dx. The length of this line is dz. The length of this line is dy. ये dy है ना? यस सर, यस सर। Yes, sir. And the length of this line is dx, right? यस यस सर।
ओके, तो सबसे पहले क्योंकि दिस इज अ वेरी स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स, so what will be its volume? Its volume will be equal to the product of its length, width, and height. So ये आप लोग के पास है, this will be the differential volume which will be represented by dV. So the differential volume of this rectangular box will be equal to length of this box multiplied by width of this box multiplied by height of this box, which is dx. ठीक है, अगर मैं इस if I consider this rectangular surface, right, what is its area? dz dy dz है. And what is the unit vector which is normal to this area? dx The unit vector which is normal to this area? ax sir. ax. तो अगर आप लोग इस एरिया को वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या आएगा? dy dz into ax normal to surface. Good. अगर मैं इस एरिया को कंसीडर करूं, what will be its area? dx dz dy. unit vector dy. Yeah, what is the unit vector which is normal to this area? ay. Good. And और अगर मैं इस टॉप सरफेस को कंसीडर करूं, what is its area? dx dy. इसका एरिया dx dy है, and the unit vector which is normal to this area is az. good. az. So देखें, you guys can calculate the differential volume of this rectangular box. You guys can calculate the area of any rectangular plane, and you guys can represent to see the area in the form of a vector quantity. And फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि we consider 2 points. एक point यहाँ पे, we consider 2 points over here, a point P over here and Q over here. इन दोनों के दरमियान में एक 3-dimensional vector को consider कर रहा हूँ. I consider a differential link vector which is extending from P to Q. So ये 3-dimensional differential link vector होगा. ये differential link vector इसलिए होगा कि the magnitude of this vector will be very small, right? yes sir, क्योंकि differential है. अगर ये 3-dimensional vector है तो इसके 3 components होंगे. मैं यहाँ से start ले रहा हूँ. ये इसका first component होगा which is in the direction of the unit vector ax. इसका magnitude कितना होगा इस component का? dz नहीं यार, इसकी बात हो रही है. dx. So this one will be equal to dx ax. This is the component which is in the direction of the unit vector ax. Then we consider the component in the direction of the unit vector ay. dy magnitude. यार ये पॉइंट मैंने गलत लिया हुआ है. ये पॉइंट यहाँ पे आएगा. सॉरी, ये पॉइंट यहाँ ये पे सर हम तभी कंफ्यूज थे. वो यार, तो तो आप सिर्फ लोगों को सरफेस पे बताना था. था ना. आप वो लोगों तो ने सिर्फ बताना था. सरफेस पे दिखाई दे रहा था. जबरदस्त. सर वो ये इस रेक्टेंगल को देख के सर कभी लगता है कि ये अंदर की तरफ है, कभी उभरा हुआ है, तो वो कंफ्यूज होता है बंदा. जी नहीं, इस हम तो रेक्टेंगल नहीं को confuse देख के होते. दो तरह से मतलब नजर आता है. कभी ये पॉइंट अंदर आता है और कभी बाहर कोने पे. सही है सर. अच्छा. Anyhow, so ये जो component है, this component is equal to dy. ay. ये component जो है, this is equal to dy ay. फिर ये जो component है, this component, इस component की बात हो रही है. dz az. So this one will be equal to dz az. So this is how we represent a 3-dimensional differential link vector in the rectangular components. मैं आप लोग के रिस्पांस के इंतजार करता हूँ. आप लोग रिस्पांस नहीं देते. तो ये डिफरेंशियल वॉल्यूम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. इसमें जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग स्मॉल लेंथ.
you guys can calculate the volume of this rectangular box. You guys can find out to see the area of any plane, and you guys can represent the area in the form of a vector quantity, and then you guys can calculate the differential link vector, 3-dimensional differential link vector in the which system? Rectangular coordinate system. देखिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? काशिफ बंद कर। ये माशाल्लाह वो बच्चे जिनको ईएमएफ की समझ नहीं आती, ठीक है ना सर? ये मैं काशिफ नहीं हूँ, ये दूसरा काशिफ है। ये जानबूझ के कभी किसका नाम लेके आता है, कभी किसका नाम। मेरा पिक्चर तो लगा हुआ है। ये सर अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने डिफरेंशियल वॉल्यूम कंसीडर करना है किस सिस्टम में? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि हम क्लास में नहीं है, इसीलिए आपको मतलब लाइक इस वॉल्यूम में काफी सारी चीजों की समझ नहीं आएगी। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियो की मदद से, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज की मदद से आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ठीक है? सर जी ये पॉइंट किधर और नहीं ले सकते, सिर्फ इसी जगह पर लें? बस किसी और जगह भी ला सकते हैं, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक 3-डायमेंशनल वेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं ना। XYZ जरूर होगा सर, इसमें किसी भी जगह पर ले सकते हैं। हाँ, मतलब एक 3-डायमेंशनल वेक्टर आप कंसीडर करें ताकि आप लोग के पास उस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट भी आ जाए, वाई भी आ जाए, जी भी आ जाए। सही है, मतलब के अलाउंग डायगोनल से रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आसानी के लिए हाँ ये डायगोनल के साथ हम लेते हैं, लेकिन ये कि उसके 3 कंपोनेंट्स आ जाए ना। अच्छा देखिए, अब इसी वॉल्यूम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप लोग की आसानी की खातिर। बिल्कुल सिलेंडर में भी दिस विल बी अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जो है मतलब ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आएगा, बिकॉज द वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल। क्योंकि हम बड़ा बनाते हैं इसलिए आप लोगों को कुछ लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आ रहे थे वहां पे। अच्छा, ये जो डी वाई है ना, जहां पे डी वाई है उसको मैं रिप्लेस करता हूं बाई डी रो। डी वाई को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बाई व्हाट? डी रो के साथ। डी रो के साथ। तो जहां जहां पे आप लोगों को डी एक्स नजर, सॉरी डी वाई नजर आ रहा है, उसको रिप्लेस करें बाय डी रो। डी एक्स को आप लोग रिप्लेस करें बाय रो डी फाई। यस सर। अच्छा, रो जो है, प्लीज मेरे साथ रहे। मैं अगर आप लोगों को ये मार्कर नजर आ रहा है, ये मार्कर नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, एज्यूम करें कि दिस इज रो, ये मार्कर जो है दिस इज रेडियल लाइन रो, ठीक है? एज्यूम कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर, यस सर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि आई रोट, प्लीज मेरे साथ रहे, मैं इस मार्कर को रोटेट कर रहा हूँ थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी फाई। सही है सर। तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग के पास? रेडियस सर, थीटा फाई एंगल। यहाँ पे क्या आएगा? आर्क। रो सर। आर्क आएगा। मेरी उंगली के साथ क्या आएगा? आर्क आएगा। इस आर्क की कीमत क्या होगी? रो डी फाई सर। रो डी फाई, ठीक है? ये आर्क होगा अगर ये एंगल ज्यादा होगा। यस सर। रो तो कांस्टेंट है ना? यस सर। रो कांस्टेंट। ये आर्क की शक्ल में नजर आएगा अगर ये एंगल बहुत ज्यादा होगा। यस सर, यस सर। यस सर। अगर ये एंगल तो बहुत छोटा है, डी फाई है ना? यस सर, यस सर। एंगल बहुत, देखे इसकी हरकत को देखे, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल इंतहाई छोटा, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नजर आएगा। यस सर। यस सर। आप लोग क्या करें कि आप लोग डी एक्स को रिप्लेस करें बाय व्हाट? रो डी फाई। अगर ये छोटा होगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। अगर ये छोटा होगा तो क्या नजर आएगा?
स्ट्रेट लाइन नजर आएगा सर। स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, लेकिन अगर बड़ा होगा तो फिर आर्क हो जाएगा सर। आर्क से नजर आए, आर्क नजर आएगा। आर्क की शक्ल में नजर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको आर्क की शक्ल में बनाता हूँ, ताकि हालांकि ये छोटा है, काफी छोटा है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, काफी छोटा है, स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, तो हम थोड़े से आर्क की शक्ल में बना रहे हैं। समझ आ रही है? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। ये आर की शक्ल में होगा, ये भी dx है, ये भी आर की शक्ल में होगा, ये भी dx है, ये भी आर की शक्ल में होगा, ये भी dx है, तो ये भी आर की शक्ल में होगा। यस सर, साइलेंटिकल होगा। यस सर। अच्छा, तो हमने dx को रिप्लेस किया बाय रोडिफाई। रोडिफाई। अच्छा, और dy को रिप्लेस किया था बाय रो जीरो, और dz को रहने दे, dz ही रहेगा। यस सर, dz को रहने दे। तो ये बेचारा ठीक है, तो dz को रहने दे। तो ये आप लोग के पास रोडिफाई है और ये आप लोग के पास डी रो है। तो ये आप लोग के पास जी बन गया है बिल्कुल। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स बिकॉज दिस आर्क इज प्रीटी स्मॉल। यस सर, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। सर आ रही है। यस सर, दिस आर्क यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, दिस आर्क इज प्रीटी स्मॉल, सो दिस आर्क विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये काफी छोटा है। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये तमाम आर्क्स, if all these arcs are in the form of straight line, what about this box? ये भी सर वो रेक्टेंगुलर की तरह ही होगा, उसकी तरह ही होगा सर। रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होगा, क्योंकि ये इंतहाई छोटा है। ये हम काफी बड़ा बना रहे हैं आप लोग की खातिर, ताकि आप लोग को नजर आ जाए। यस सर। यस सर, यस सर। इसीलिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर नहीं आएगा, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स। यस सर। अच्छा, तो इसकी डिफरेंशियल वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, देन the differential volume will be equal to length of the box, width of the box, and height. length कितना है? d rho. What about the width of the box? rho d pi. What about the height of the box? Easy. dz. इसका differential volume जो है that will be equal to rho d phi dz. यस सर। अगर आप लोग इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के लेंथ, विड्थ और हाइट को आपस में ज़रब दे, you guys will get the differential volume which is rho d phi dz. In the form of cylindrical coordinates. Yes, this is the differential volume in the cylindrical coordinate system. ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर, this unit vector is the unit vector a rho. A rho, yes sir. ठीक है जी? यस सर। यूनिट वेक्टर इज a rho. यस सर। प्लीज मेरे साथ रहे। इस एरिया की बात हो रही है, इस रेक्टेंगुलर प्लेन की बात हो रही है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेन? सर rho d theta multiply by dz. rho d phi. Rho d phi. Pi. यस सर, d phi. Rho d phi into dz, and the unit vector which is normal to this plane. Normal to this plane is a rho. Arrow. ठीक है, so you guys can calculate, you see this area, calculate कर सकते हैं। Yes sir. यस सर। फिर आप लोग इस टॉप रेक्टेंगुलर सरफेस को कंसीडर करें। व्हाट इज इट्स एरिया? टॉप रेक्टेंगुलर सरफेस जो है d rho d phi. हाँ, तो तरतीब में इस तरह रखेंगे आप लोग, रो डी फाई। Yes sir. d phi az.
AZ ये आ जाएगा सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर चलेगा कनेक्शन की वजह से आ जाएंगे। माजिद साहब की क्लास, माजिद साहब की कॉल आ रही थी, ठीक है? इट्स ओके सर। आर यू गाइस बैक? यस सर, हम इधर ही हैं। आप लोग वापस आ गए हैं मेरे साथ? यस सर, हम आपके साथ ही हैं। हेलो? यस सर, वॉइस आ रही है। यस सर, हम इधर ही हैं सर। यार मेरी आवाज इसको क्या हुआ? एक मिनट यस सर, अब आ रही है। ऑफ हो गया। पहले भी आ रही थी। सर को हमारी वॉइस नहीं जा रही है, सर की तो आ रही है सर। दोनों स्पीकर तुम्हारी नहीं जा रही है, हमारी जा रही है। तो ऑफ नहीं हुआ। ब्लूटूथ इज ऑन। सर आवाज पक है सर। सर काशिफ आप म्यूट कर दे, फिर आवाज जाएंगी सर को। वन टू वन। करेक्ट के सिग्नल्स में थोड़ी ना हो सकते। हेलो। अच्छा यस चलो सर। ठीक है, अभी आपकी आवाज आ रही है, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा सो मतलब इस टॉप प्लेन की बात हो रही थी। द एरिया विल बी रो d5 into d रो and the unit vector which is normal to AZ। गुड। उसके बाद जो मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, प्लीज ये जो प्लेन है, 2 डॉटेड लाइंस एंड 2 सॉलिड लाइन, 2 dotted lines and 2 solid lines. Yes sir. DZ D रो into A5। ये DZ D रो, और उस साइड पे जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो A5 होगा। माइनस होगा, माइनस A5 होगा सर। नहीं प्लस A5 होगा। प्लस ये इस तरह प्लीज मेरे साथ रहें। नॉर्मल टू प्लेन है। यस सर। ये आपको नजर आ रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए प्लीज मेरे साथ रहे। ये D रो है, नजर आ रहे हैं? यस सर। यस सर। This side is D रो, this side is this side is D रो, सर नहीं आ रहा सर, ऊपर कर दिया। अच्छा ये अभी नजर आ रहे हैं? यस सर, अभी आ रहा है। This side is D रो, this side is zero, फिर this side is D। ये जो आखिरी लाइन जो है, दिस इज 0, और ये लाइन जो है देखिए, दिस लाइन इज 0, दिस लाइन इज 0, दिस लाइन इज 0, दिस लाइन इज 0 एंड दिस लाइन इज 0। अब मेरे साथ रहे, दिस इज DZ। यस सर। दिस इज DZ। yes sir, यस सर। फिर यहाँ पे क्या होगा? DZ, DZ। यहाँ पे क्या होगा? DZ। ये जो लाइन है ये बेसिकली रो D5 है। यस सर। ये इस तरह देखिए, रो को हमने इस तरह रोटेट किया था ना। yes sir, समझ आ रही है? तो दिस इज रो D5। यस सर। ये क्या है? रो D5, ये लाइन रो D5, ये लाइन रो D5, और ये लाइन रो D5। अच्छा ये यूनिट वेक्टर आप लोग के पास क्या है? एरो। एरो, ये एरो है, तो यहाँ पे आएगा A5, A5, यहाँ पे आएगा AZ, देखिए एरो नजर आ रहा है? एरो, yes sir, yes sir, एरो। मुझे कैमरा नजर नहीं आ रहा, तो कभी कभार मैं ऊपर चला जाता हूँ, तो प्लीज मुझे गाइड करें। आप ये नजर आ रहे हैं कि नहीं? सही है सर। सही। दिस इज यूनिट वेक्टर एरो। yes sir, यस सर। एरो, दिस इज यूनिट वेक्टर A5 एंड दिस इज यूनिट वेक्टर AZ, इस प्लेन की बात हो रही है, ठीक है, इस प्लेन की। yes sir, ये जो प्लेन है, देखिए, द एरिया ऑफ दिस प्लेन विल बी इक्वल टू, ये क्या है? D रो, क्या है? DZ, और द यूनिट वेक्टर व्हिच इज नॉर्मल टू दिस एरिया इज 25, ये A5।
A5 तो A5 तीन एरियाज आप लोग के पास आ गए। यस सर। A5 तीन एरियाज आप लोग के पास आ गए। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ ये, अब मैं यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करूंगा। मैं 3 डायमेंशनल वेक्टर को कंसीडर करता हूँ, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, ठीक है। यस सर। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं एक वेक्टर ड्रा करूँ, द वेक्टर बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विल बी in 3 ठीक है। so if I draw a vector from this point to this point, this will be a 3-dimensional differential length vector. यस इस बंदे को या म्यूट करवाएं या फिर उसको धक्का दें। सर ये बार बार आता है सर, पता नहीं कौन है सर। अच्छा, एनी हाउ ये जो वेक्टर है बिटवीन पी एंड क्यू, इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए। देखिए सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट को कंसीडर करता हूँ। दिस कंपोनेंट विल बी डी रो ए रो। यस सर। यस सर। दिस कंपोनेंट विल बी डी रो एरो। एरो। दिस कंपोनेंट विल बी रो डी फाई A5। A5 बिल्कुल। देखिए इस कंपोनेंट की बात हो रही है, सो दिस विल बी डी रो एरो। यस सर। इस कंपोनेंट की बात हो रही है, सो दिस वन विल बी इक्वल टू रो डी फाई A5। और फिर इस कंपोनेंट की बात हो रही है DZ इन तीनों को अगर आप लोग ऐड करें आपस में अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, head to tail rule. Yes sir. आप लोग के पास डिफरेंशियल लिंक वेक्टर आ जाएगा किस सिस्टम में? in cylindrical coordinate system. Coordinate So this system. is d rho a rho plus rho d phi a phi and plus dz a z. Yes, sir. This is a 3-dimensional vector, 3-dimensional differential vector in the In a cylindrical. cylindrical. Yes sir. Excuse me, sir. जी सर ये जो बंदा रिस्पांस आपको दे उसको जरा बोले कि जल्दी अपने माइक आप करें, फिर उसका तस्वीर स्क्रीन पर रहता है, हमें आपका स्क्रीन नहीं दिख वीडियो रहा। पिन कर दो, वीडियो पिन कर दो। मोबाइल में नहीं होती। मोबाइल में नहीं होता। मोबाइल में होती है, स्लाइड कर लो राइट की तरफ, जो वो ब्लॉक्स में सारे शो हो रहे हो। सर की वीडियो पे डबल क्लिक कर लो तो ओपन हो जाएगी फिर वो। Thank you. थैंक यू हो गई। अच्छा ठीक है, अब हमने क्या करना है प्लीज, अब हमने इसी वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है किस चीज में? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। नहीं, इसी वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट करना है Cylindrical में सिलेंड्रिकल में है, स्फेरिकल में करना है। स्फेरिकल में करना है। तो स्फेरिकल में करने के लिए आप लोग क्या करें, देखें ये फिलहाल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। यस सर। अच्छा, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो होता है, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रो इज इक्वल टू थीटा। जी r sin थीटा हेलो यस सर। यस सर। यस सर। rho is equal to r sin theta in the spherical coordinate system, so we will replace rho d phi by r sin theta d theta d phi d rho को आप लोग रिप्लेस करें बाय d r। यस सर। और d z को रिप्लेस करें बाय r d थीटा। ठीक है जी? यस सर। ये भी आर्क बनाता है सर। हाँ, ये भी आर्क बनाएगा। इट विल बी आर्क अगर थीटा ज्यादा होगा। समझ आ रही है? यस सर बिल्कुल। अगर थीटा बड़ा होगा फिर तो ये आर्क होगा, लेकिन अगर थीटा छोटा होगा तो फिर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन होगा।
तो देखिए इसकी बात हो रही है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये डी रो था, यस सर। यहाँ पे आ जाएगा डी आर। ठीक है जी। यस सर। सर ये रो डी फाई था, दिस वन विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई। यस सर। ये डी जेड था, सो दिस वन विल बी इक्वल टू आर डी थीटा। आर डी थीटा। ठीक है जी। यस सर। बाकी ये भी आर डी थीटा के बराबर होगा, ये भी आर डी थीटा के बराबर होगा। ये इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ आर्क अगर थीटा बड़ा होगा। थीटा बड़ा हो। लेकिन थीटा छोटा है तो ये सारे स्ट्रेट लाइंस है। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे फाई छोटा है, डी फाई छोटा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे डी थीटा भी छोटा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। इफ ऑल द लाइन आर स्ट्रेट लाइन, दिस वॉल्यूम विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। जबरदस्त यार, क्या बात है आपकी। ठीक है। यस सर। ओके, सो कैन वी कैलकुलेट इट्स डिफरेंशियल वॉल्यूम? यस सर, बिल्कुल सर। यस सर। Can calculate its differential volume. What is the length of the box? dr. dr. What is the width of the box? r sin theta d pi. What is the height of the box? r d theta. r d theta. अगर इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें, आप लोग के पास आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर आ जाएगा। डी आर। यस सर। दिस विल बी द डिफरेंशियल वॉल्यूम। ठीक है जी। बिल्कुल सर। यस सर। क्या दिस विल बी द यूनिट वेक्टर ए आर। यस सर। ए फाई उसी जगह होगा और ए थीटा ए जेड की जगह, और ए थीटा अब इस डायरेक्शन में होगा, नीचे होगा ए थीटा। यस सर। दिस विल बी योर ए थीटा ना along negative z axis। इस फिगर में इट विल बी along negative z axis। इसको खत्म करें, इस यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ये along नेगेटिव जी एक्सिस कैसे, नेगेटिव एक्सिस कैसे होगा, इसकी समझ नहीं है सर जी। ए थीटा along नेगेटिव एक्सिस कैसे होगा सर, ये नीचे जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। यस सर। तो एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्सिस में आता है ना। यस सर हो गया। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि दो यूनिट वेक्टर्स आप लोग फाइंड आउट करेंगे और इस यूनिट वेक्टर के लिए आप जाएंगे टेबल ऑफ द क्रॉस। यस सर, समझ आया। ठीक है। चलो ठीक है, आपको समझ आ गई है। अब मैं इस एरिया को कंसीडर कर रहा हूँ। यस सर। ये r sin थीटा d थीटा इनटू r d थीटा। ठीक है, ये r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाई। यस सर। इन द डायरेक्शन ar। डायरेक्शन ऑफ ar। अच्छा, ए फाई के लिए हमने इस प्लेन को कंसीडर किया था। ए फाई के लिए हमने इन दो डॉटेड लाइंस को कंसीडर किया था और दो ये सॉलिड लाइंस को। तो ये डी आर है, एक सॉलिड लाइन है, दिस इज डी आर। r dr d theta। It will be r dr d theta and the unit vector which will be normal to the outer side of the plane will be a phi। ठीक है, a theta चूंकि नीचे, मतलब हम बॉटम प्लेन की बात कर रहे हैं। r sin theta dr d phi। Exactly, and the unit vector is a theta। गुड। अब हमने क्या करना है, हमने दो पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा। तो मैं इन दो पॉइंट्स को कहाँ पे कंसीडर करूँ? इसको, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा। इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान इफ आई कंसीडर अ वेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम P to Q, दिस विल बी अ 3-dimensional डिफरेंशियल लिंक वेक्टर। ठीक है, और इस 3-dimensional डिफरेंशियल लिंक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होंगे। प्लीज मेरे साथ रहे। दिस कंपोनेंट इज dr। यस सर। यस सर। दिस कंपोनेंट इज dr। यस सर। यस सर। यस सर।
यूनिट वेक्टर क्या आएगा इसके साथ? dr AR AR ठीक है. This component will be RD theta RD theta RD theta theta हाँ A theta A theta गुड a थीटा. और आखिर में ये आएगा. This one is R sin theta R sin theta D pi D pi A pi A pi. इन तीनों कंपोनेंट्स को अगर हम आपस में ऐड करें हेड टू टेल रूल के मुताबिक तो क्या आएगा? differential length vector in SHS. तो डिफरेंशियल लिंक वेक्टर आ जाएगा. तो डिफरेंशियल लिंक वेक्टर जो है, थ्री डायमेंशनल डिफरेंशियल लिंक वेक्टर जो है, इट विल हैव अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर AR, another component in the direction of unit RD vector theta theta, or another component sin theta in the direction of A phi. A pi. phi. Yes, sir. Phi. तो ये जो है डिफरेंशियल वॉल्यूम्स हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. एंड you guys need to know how to calculate the areas of different planes and the volume of the small balls, and then how do we represent a three dimensional what? Length. Length Yeah. vector, differential length length vector. vector. Exactly. अच्छा, फिर हमने पोजीशन वेक्टर्स की बात की है. There's सर a वो अभी difference. नहीं पढ़े आगे. वो 5 आप लेक्चर लोग तक पढ़ ले. लिखे थे. हाँ नहीं, वो पढ़ ले, काफी आसान है. ठीक है. लेट्स से अगर आप लोग Yes, के sir. पास एक पॉइंट है 1 2 3, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस सर ये मीटिंग खत्म होने वाली है सर, सिर्फ 1 मिनट से कम टाइम है. ax + 2ay + 3z. बस मैं आप लोग को 3z. इजाजत दे रहा हूँ. ठीक है. ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर. तो पोजीशन वेक्टर और डिस्टेंस वेक्टर आप लोग पढ़ ले. मैं एक और वीडियो आज इस हफ्ते में अपलोड करूंगा सेकंड चैप्टर से. ठीक है. यस Yes, सर. sir. ओके सर, ओके सर. Yes. थैंक यू सर. थैंक यू अल्लाह हाफिज़ सो सर. मच. अल्लाह हाफिज़. हाफिज. बाय बाय सर. अल्लाह हाफिज़. Assalamu alaikum sir. बाय बाय. Good See you night. tomorrow. Good night. Take care. Good night Osama. Good night Kachi. ये रिकॉर्डिंग फिर अपलोड करना है अमर. हाँ, ये अपलोड करिए और होस्ट से दरखास्त है कि मीटिंग